Hello everyone, this is Falguni Zaveri from Karma Healing, bringing you reading for the week of May, that is starting from the 23rd, that is the Monday, till the 29th, that is the Sunday. Hope you all are doing very well. Coming with a reading after a very long time. Missed you guys. So let's start with the reading. The reading that we are going to do right now is you will choose from these three piles or these three flat stones, flat crystals, and these are the symbols of archangels. This is the symbol of you can say that this is the symbol of Raphael, this is the symbol of Gabriel, and this is the symbol of Michael. So whichever flat stone you resonate, whichever angel you resonate with, I'll give you some minutes to just concentrate on the crystals and see which one you resonate with. This is, again, I'll tell you, pile 1, that is Archangel Raphael. This is Archangel Gabriel, if you can see, and this is Archangel Michael. So whichever symbol, whichever sigil you are attracted to, please give a moment, concentrate, and then pick up one sigil. So let's start with pile number 1, that is Archangel Gabriel. So let's start with the reading. So we'll start with the reading with the first pile, and that is Archangel Raphael. This is the one. Whoever chose this symbol will go ahead and do the reading for those people. For the people who attracted this stone, this flat stone, and this symbol, that is for Archangel Raphael. We'll go ahead and do the reading. So let's go ahead and in this reading I'm also going to go ahead and remove angel guidance, as well as which planet is going to affect you more in the coming week. So let's go ahead and start with pulling a few cards for you. For the people who chose pile number 1. So if I see the reading for people born under the pile number 1, there are more of relation cards. So there is more of you will build new relationship, you will build you'll meet new people, आप new people से मिलोगे, new relationship बनाओगे कहीं ना कहीं. There are lot of chances कि आपको सामने से लोग आएंगे फ्रेंड्स बनने के लिए. You will increase a social circle. So ये वीक आपका मोस्टली फ्रेंडली, अट्रैक्ट मोर रिलेशनशिप या फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना ज़्यादा है. और अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं ट्रैवल भी आ सकता है आपको रिलेटेड टू फाइनेंस का थोड़ा दैट इज़ लाइक यू विल हैव टू मैनेज योर फाइनेंस. जैसे कि फाइनेंस को मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस को स्टेबल करना पड़ेगा. फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स है तो कहीं ना कहीं देयर इज़, इफ़ यू सी दिस कार्ड, देयर इज़ अ जगल इन योर फाइनेंस. सो ऊपर नीचे फाइनेंस में ये वीक में हो सकता है. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द फाइनेंस थिंग. बट रिलेशनशिप में देखो तो सेलिब्रेशन भी आया है, तो कहीं ना कहीं आप नया घर ले सकते हो, नया व्हीकल ले सकते हो, नई चीज़ कुछ आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये वीक में आएगी. एंड यू आर गोइंग टू, जैसे मैंने बताया, बिल्ड अप न्यू रिलेशंस इन दिस वीक. लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग इन योर कार्ड्स. अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो जैसे मैंने आपको बोला है, कहीं ना कहीं इट इज़ अ सेलिब्रेशन कार्ड.
आप अगर देखोगे तो मतलब फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, फैमिली से मिलेंगे, सब एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे. सो दैट काइंड ऑफ कार्ड हैज़ कम अगैन. सो लाइक आई टोल्ड यू, ये वीक में आपका बहुत where your relationship are concerned, it is mostly this week will be more of relationship, more of meeting new people. घर वालों को मिलेंगे, जॉइंट फैमिली है तो सब लोग इकट्ठा होकर पार्टी करेंगे या कुछ ऐसी नई चीज़ आएगी घर में जिसके वजह से सेलिब्रेशन होगा. सो ये सब चीज़ ये वीक इट इज़ गोइंग टू हैपन. लेट्स सी वन मोर कार्ड. कहीं ना कहीं ये वीक में आप देखोगे तो ये कार्ड माइट स्कैर यू अ लिटिल बिट थोड़ा, बट इट इज़ अ डेथ कार्ड. डेथ कार्ड मतलब इट्स अ रीबर्थ. तो जो भी आप कर रहे हो अभी, जो भी करियर में हो या जो भी प्लान कर रहे हो या कर रहे हो ऑलरेडी, दैट माइट टोटली एंड एंड यू विल स्टार्ट अ फ्रेश. तो मतलब सपोज आपका कोई बिजनेस है, अगर बिजनेस है तो चांसेस आते हैं कि ये वीक आप टोटली वो बिज़नेस बंद करके यू माइट थिंक समथिंग टोटली डिफरेंट करने के लिए. करियर में भी शायद जो करियर में हो, जो ऑक्यूपेशन में हो, जो प्रोफाइल है आपकी, उससे हट के आप टोटली डिफरेंट करोगे कुछ ये वीक. सो दैट काइंड ऑफ कार्ड हैज़ कम. सो you might venture into a totally new subject, a new. अगर स्टूडेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट दे आर स्टडिंग, जो सब्जेक्ट में वो स्टडी कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट को छोड़ के, वो मेजर को छोड़ के मे बी विल ट्राई टोटली डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी. सो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग एंड दैट काइंड ऑफ हैपनिंग ये वीक में आपके साथ हो सकता है. अब देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपको ये वीक में सबसे ज़्यादा असर करेगा बेसिकली. सो हम देखते हैं, लेट्स सी विच प्लैनेट इज गोइंग टू इफेक्ट यू. वाओ. सो अगर देखो तो आपका आया है शुक्र, वीनस. सो कहीं ना कहीं ये वीक में आप का वीक फुल ऑफ यू कैन से हैप्पीनेस, फुल ऑफ पार्टीज. जैसे बोला आप नई व्हीकल या कुछ नया हाउस या कुछ है. वीनस इज समथिंग दैट आपको नई चीज़ें लेने में, या यू कैन से anything related to jewelry या anything related leisure things, या कुछ भी अपने लिए लेना, और वो सब चीज़ें जो आती है, pleasure, beauty, ये सब creativity, ये सब वीनस में आता है, शुक्र में आता है. तो बेसिकली दिस वीक आपका बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, बिकॉज समथिंग material काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट. लाइक जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ ना कुछ नया, जैसे कि घर, स्कूटर, बाइक, या आप ले लो कुछ भी, इज़ प्लानिंग टू कम टू यू दिस वीक. या न्यूज़ आएगी या आप बुक कराएंगे या कुछ ना कुछ. बट डेफिनेटली ये वीक में आपको कुछ नया, कुछ चीज़ अच्छी मिलने की, there is opportunity coming to you where you will get something very precious and very materializing. So देखते हैं अभी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं. देखते हैं आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं. अगर मैं एक कार्ड पिक करूं तो इससे स्पॉन्टेनिटी आप देख सकते हो. इट्स ए स्पॉन्टेनिटी. यू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द माइंड एंड फ्रीली एंड लविंग एम्ब्रेस न्यू सिचुएशन. सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में न्यू सिचुएशन रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप आएगी. जैसे मैंने आपको हैव टोल्ड यू बिफोर के कहीं ना कहीं न्यू फ्रेंड्स आएंगे, न्यू रिलेशनशिप बनेगी, कहीं ना कहीं न्यू पीपल से आप मिलोगे. सो दैट काइंड ऑफ ऑल्सो थिंग्स आर कमिंग वेर योर लव लाइफ इज़ कंसर्न. तो डेफिनेटली कोई नया आपकी लाइफ में आ सकता है ये वीक में, या न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बन सकती है. चलिए अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं. लेट्स सी. एंजल से आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. कहीं ना कहीं ये वीक में अगर आप किसी से हेल्प मांगेंगे या किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत है, तो डोंट बी शाई, डोंट बी मैं थिंकिंग कि मैं हेल्प कैसे मांग सकता हूँ या मांग सकती हूँ किसी के पास. बट इफ़ यू आस्क फॉर हेल्प, डेफिनेटली वो पर्सन आपको हेल्प करेगा.
कहीं ना कहीं हेल्प लेने से आप आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं हेल्प लेने से यू विल फाइंड द न्यू डायरेक्शंस ये वीक। तो एंजल आर टेलिंग यू टू टेक हेल्प ऑफ अदर्स, कॉम्प्रोमाइज़। हर एक चीज़ जैसी हमको चाहिए वो हमें मिल नहीं सकती है, सो वी हैव टू समवेयर कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ करने से हैप्पीनेस भी आएगी, बिकॉज वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे लिए अच्छी नहीं हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। ओनली द यूनिवर्स, और यू कैन से the energy around us, or you can say whoever you believe in, God, angels, anyone has chosen the right path for us, so they will let us know the right path. So compromise, अगर आप किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसी में ही आपकी खुशी रहेगी, कहीं ना कहीं that compromise will take you ahead to a very big thing in life, you know. So compromise कीजिए और you know you will get whatever you want इन यू नो, थोड़ा मेहनत करने से आपको वो मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, पर लेटर इन लाइफ यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। सो अभी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए एंड वॉट एवर योर विश विल गेट फुलफिल्ड इन द कमिंग वीक, और यू कैन से इन कमिंग डेज। सो दैट वॉज फॉर द पाइल 1. अब लेट्स गो अहेड एंड choose the second pile. Second pile, whoever chose the sigil, the symbol, that is for Archangel Gabriel. किसी ने भी ये symbol choose किया, the second pile will continue with the reading. So for the people born, sorry, not born, but have chosen the second pile, and this reading is for the week of 23rd till the 29th. So let's pull some cards for people who chose Archangel Gabriel. So this week for the people who chose the second pile, if I tell you, kahin na kahin it is going to be relationship wise, kahin na kahin आपकी एक्सटेंडेड फैमिली या यू नो whoever is far away, ओल्ड पीपल जैसे कि ग्रैंड मदर हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, इनको आप ये वीक में शायद मिलेंगे। मिलने से यू नो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट यू अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर यू। बट कहीं ना कहीं ऑल्सो ये वीक में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इश्यूज भी आ सकते हैं। मे बी रिलेशनशिप रिलेटेड टू योर मैरिज, लव लाइफ, या इफ़ यू आर इन टू अ रिलेशनशिप, ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं थोड़े इश्यूज आपको आ सकते हैं। बट इट इज़ समथिंग दैट यू कैन गेट आउट ऑफ इट। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक वीक है जिसमें आपको थोड़ा डिप्रेस फील होगा, मे बी यू विल फील लिटिल लो जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग योर वे। बट आगे जाके सब कुछ ठीक हो सकता है। जस्टिस कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपको जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, मे बी the right decision that you are waiting for to come into your life will come to you in this week. तो ये वीक में वो डिसीजन हो जाएगा, या आपको जस्टिस मिलेगी जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऑल्सो जस्टिस कार्ड आया है, तो आपको कोई भी पेपर या कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ भी साइन करने से संभालना है। कहीं ना कहीं कोर्ट के इश्यू आपके लिए नहीं आ जाए, कहीं ना कहीं यू नो लीगल इश्यूज नहीं आ जाए, इसका आपको ये वीक में थोड़ा संभालना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ रिगार्डिंग दैट। बट डेफिनेटली जस्टिस कार्ड आया है, तो आपको जस्टिस मिलेगी फॉर व्हाट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। तो कहीं ना कहीं ये वीक में रिलेशनशिप में आपको थोड़ा संभालना है। रिलेशनशिप में इतने गुड कार्ड्स नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा। बट दैट शैल पास, इट्स जस्ट फॉर अ वीक, सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बट देन ऑल्सो रिलेशनशिप में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, एक्सटेंडेड फैमिली, या यू नो जिनसे मिले नहीं हो, आप शायद ये वीक में मिलोगे, तो वो आपको अच्छी फीलिंग करवाएगा एंड यू विल फील बेटर। सो देखते हैं अभी ये कार्ड्स क्या कहते हैं। कहीं ना कहीं इट्स 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये वीक में
आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, बेसिकली जिस चीज़ के लिए, जैसे कि एक स्टॉर्म आया है एंड यू आर वेटिंग द स्टॉर्म टू गो, ताकि आप आगे बढ़ सके। अगर आप किसी बोट में बैठे हो, यू वांट टू क्रॉस द लेक या कोई नदी आपको क्रॉस करनी है, तो वो जो तूफान आया है उसकी आप वेट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये वीक ऐसा है, वीक है जहाँ इट विल शो यू द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन दिखाई देगा, बट स्टिल इट विल बी अ वेट। तो मतलब कोई भी प्रोग्रेस, जैसे कि आपके वर्क में, करियर में, या किधर भी या अगर न्यू कोर्स लेने वाले हो आप, या न्यू थिंग्स करने वाले हो, तो दिस वीक इज़ नॉट द वीक आप स्टार्ट करो। वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज ये दिनों में देर आर चांसेस कि देर विल बी थिंग्स दैट विल स्टॉप यू। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कहीं ना कहीं आपको वो वेट एक वीक की दिखाई दे रहा है। तो एक वीक आपको यू विल हैव टू वेट एंड देन डिसाइड नेक्स्ट वीक के मेरे को आगे मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सोच समझ के जो भी करना है आपको ये वीक में करना है। अब देखते हैं प्लैनेट्स, विच प्लैनेट्स आपको असर करेगा। देखते हैं इसमें से लेके एक टू कार्ड्स आ गए, सॉरी, ओके। मर्क्यूरी, सो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी कार्ड आया है। तो मर्क्यूरी कार्ड इज़ द कार्ड फॉर इंटेलिजेंट, नॉलेज, कम्युनिकेशन। सो कहीं ना कहीं ये वीक इज़ अ वीक वेर यू विल लर्न मोर थिंग्स। कहीं हो सकता है कि आप न्यू कोर्स लो, न्यू स्टडी लो, न्यू सब्जेक्ट लो, टोटली न्यू। इट इज़ अ वीक वे यू कैन स्टडी एंड कम्युनिकेशन से ये वीक आप आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं करियर में अगर कोई कन्फ्यूजन है या कलीग से के साथ कुछ कन्फ्यूजन है, तो कहीं ना कम्युनिकेशन करने से आपको कहीं ना कहीं वो डाउट क्लियर हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। तो मर्क्यूरी इज़ द प्लैनेट जो आपको ये वीक इज़ ऑन हाई फॉर यू। सो मर्क्यूरी को लेके आप आगे बढ़िए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, बिकॉज दिस वीक विल हेल्प यू टू get new knowledge, get new subject to study and new people to communicate with. So let's go ahead and start and see this card, love life. देखते हैं आपकी लव लाइफ क्या कहती है। It says willingness. You are able to compromise if the end result is love. So it is telling you कि willingness मतलब आप you are willing to sacrifice lot of things because of love. मतलब you are आपको अगर लव मिले तो उसके लिए आप काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हो। यू आर वांटिंग लव, यू आर वांटिंग केयर इस वीक में। तो कहीं ना कहीं आपको वो मिसिंग लगेगा, बट यू आर रेडी टू गिव अप। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको फीलिंग्स हो रिलेटेड टू लव थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और कहीं ना कहीं यू विल डिसाइड टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द लव यू वांट। सो वो कॉम्प्रोमाइज़ ये वीक में है वेयर लव इज़ ऑल्सो कंसर्न। सो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो लव, वो रिलेशनशिप जिसकी आप राह देख रहे हो या यू आर वेटिंग इज़ गोइंग टू शो अप कमिंग टू यू दिस वीक। अब देखते हैं एंजल्स, व्हाट डू एंजल्स हैव टू से। So 2 cards for angels. It says recovery, it's up to you. So कहीं ना कहीं angels का ये कहना है कि this week is a week where you should meditate, you should stay calm, you should have peace and relax yourself and not do too much of exertion or not think too much, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ये वीक। दिस इज़ अ रिकवरी वीक। तो कहीं ना कहीं पीस रखिए, शांति रखिए, कहीं ना कहीं मेडिटेट कीजिए तो उससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये वीक में, बिकॉज दिस वीक इज़ समथिंग दैट यू आर रिकवरिंग योर सेल्फ यू और आप वो स्ट्रेंथ यू आर यू कैन से accumulating the strength within you this week is for recovery। so जो भी डैमेज इतने वीक से किया है या तो जो भी स्ट्रेस आपको इतने वीक से है, ये वीक में आपको रिलैक्स करना है। लेट द टाइम एंड द डेज पास, जैसे पास होते हैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। वट एवर डिसीजन
आप जो ये वीक लेते हो, जो भी आप करते हो, इट्स टोटली अप टू यू। सो जस्ट गो विथ योर गट फीलिंग। अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है ये वीक में तो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। आप ट्रस्ट रखिए अपने आप में एंड देन आगे बढ़िए, बिकॉज इट्स टोटली अप टू यू। द एंजल्स आर सेइंग कि आप जो भी डिसीजन लेंगे दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। ऑल्सो इट इज़ guiding you that don't listen to anyone where your relationship is concerned or where any kind of career or work is concerned. Just move ahead with your gut feeling। जो आपको लगे अंदर से आपको करना है वही आप कीजिए। किसी की बातों में आके कुछ गलत, don't do anything wrong। So that's what the angel cards are telling you। So that's it for pile number 2। Now we'll go ahead and do pile number 3, people who have chose this crystal, and that is the symbol of Archangel Michael। So let's see what the reading for the third pile is। चलते हैं, देखते हैं reading third pile के लिए। पहले निकालते हैं ये कार्ड्स। निकालते हैं 3 कार्ड। पीपल हु आई हैव चोजन द थर्ड पाइल दैट इज़ आर्कएंजल माइकल। जिसने चूज़ किया है, कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो आपको ये वीक में थोड़ा संभलना है। आपके लोग जो आजू बाजू है, हु आर यू नो सराउंडिंग यू, द पीपल हु आर सराउंडिंग यू, बिकॉज कहीं ना कहीं कार्ड से ये एनर्जीज आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका आर्ग्यूमेंट्स होगी, आपके झगड़े होंगे, आपके फाइट होंगे, और कहीं ना कहीं यू नो इट इज़ गोइंग टू कॉज किसी ना किसी को हार्म होगा, या किसी ना किसी को वो यू कैन से दैट काइंड ऑफ इमोशनल भी हार्म हो सकता है, फिज़िकल भी हार्म हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ों से थोड़ा केयरफुल रहना है ये वीक में। रिलेशनशिप के लिए इफ़ आई सी ओवरऑल ये कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं इट्स अप टू यू वेयर योर रिलेशनशिप इज़ कंसर्न। आप अगर चाहोगे तो आगे बढ़ सकते हो रिलेशनशिप में, अगर आप नहीं चाहोगे तो आप नहीं बढ़ सकोगे। तो आप इट इज़ टोटली अप टू यू कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आई डू सी कि आपको कहीं ना कहीं सोच समझ के पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ये वीक में ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी की एडवाइस या किसी की सलाह लेके आप आगे बढ़ेंगे। वह पैसे इन्वेस्ट करने की बात हो या पैसे यू नो यू कैन से अगर इन्वेस्टमेंट में रखने हैं या बैंक में रखने हैं इंटरेस्ट के लिए, या यू नो आपको कुछ भी यू नो करना है वेर आपके पैसा इज़ कंसर्न, वेर योर मनी इज़ कंसर्न, तो थोड़ा संभाल के किसी की एडवाइस लेके फिर आगे बढ़िएगा वेर योर फाइनेंस इज़ कंसर्न। बट यस डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, लोगों से संभालना, आजू बाजू लोग हैं उस कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से फाइट हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, जिसके वजह से किसी ना किसी को इमोशनली शायद हर्ट हो या फिज़िकली हर्ट हो। सो उससे आपको बहुत बहुत संभालना है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप आजू बाजू लोगों या अपने जो वेल विशर्स है उनको पूछ के आगे बढ़िएगा। कहीं ना कहीं देयर इज़ फाइनेंस कमिंग टू यू। मैं देख रही हूँ कि फाइनेंस आएगा, बट कहीं ना कहीं उसको कैसे हैंडल करना या कैसे इन्वेस्ट करना या कहाँ रखना is a big thing for you coming this week। so वो किसी की एडवाइस या किसी के यू नो यू कैन से गाइडेंस लेके आप आगे बढ़िएगा। ऑल्सो लेट्स चेक अदर कार्ड्स, ये कार्ड्स क्या कहते हैं। सो इट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो इट इज़ टेलिंग यू समथिंग कि आप ये वीक इज़ लाइक जैसे आपको बोला पहले, जैसे कि इट्स अ फाइनेंशियल वीक वेयर फाइनेंस इज़ गोइंग टू कम टू यू, बट इट इज़ अ वीक वेयर आपको उसको इन्वेस्ट करना है। आपने उसको इन्वेस्ट किया है, यू विल हैव टू वेट फॉर द ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको वो वेट दिखाई दे रहा है, जहाँ आप ये पैसा जो आया है आपका, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में रखेंगे और कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ
जो दिखाई देगा, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आगे जाके मिलेगा. दिस इज़ नॉट द वीक वेर यू विल हैव दैट फाइनेंस. बोलते हैं ना, जो पैसा आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं होगा. आप उसको मतलब आपके बैंक में या आपके इन्वेस्टमेंट में वो पैसा बिल्कुल दिखेगा. यू विल सी दैट इन योर बैंक अकाउंट और इन योर इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग, बट वो पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा. योर मनी इज़ ग्रोइंग डेफिनेटली. ये वीक में आपको पता चलेगा कि ओके मैंने इतना इंटरेस्ट कमाया है, इतना. बट वो जो बोलते हैं ना कि रुपया हाथ में चाहिए, फाइनेंस हाथ में चाहिए, वो हाथ में नहीं है. बट यू आर सेविंग क्वाइट अ बिट, जो आपको ये वीक में पता चलेगा. एंड इट्स ग्रोइंग. सो आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं और पैसे आएंगे भी, पर आप खर्चा नहीं करेंगे बट इन्वेस्टमेंट में रखेंगे. तो ये वीक इज़ बेसिकली जस्ट फॉर सेविंग द मनी, नॉट स्पेंडिंग इट, काइंड ऑफ अ थिंग. देखते हैं कौन सा प्लानेट आपको ये वीक में, which planet. So it's Ketu. So nothing to worry about. Of course Ketu is the planet जो थोड़ा आपको स्पिरिचुअलिटी के पास भी लेके जा सकता है कहीं ना कहीं. लॉट ऑफ सीक्रेट थिंग्स जो आपको शायद ये वीक में पता चल सकती है, क्योंकि केतु इज़ द वन दैट इज़ मेजर प्लानेट दैट विल बी इफेक्टिंग यू दिस वीक. सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के तरफ ये वीक आपको थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहेगा. यू कैन स्टिल बैंक टूवर्ड्स मोर ऑन स्पिरिचुअलिटी, बट कहीं ना कहीं ये वीक ऐसा वीक रहेगा जहाँ आपको कहीं ना कहीं जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं यू विल फील दैट इट इज़ नॉट गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट. मतलब जितनी हार्ड वर्क आप कर रहे हो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है. इज़ बिकॉज ऑफ द केतु. इट विल गिव यू द रिजल्ट, very slow result. In fact it will cut down your result that is coming to you. But definitely आप spirituality के आपको कुछ spiritual awakening होगा, या मे बी यू विल अटेंड अ मेडिटेशन क्लास, या कहीं ना कहीं केतु आपको वो डायरेक्शन में ये वीक में यू विल सी के लेके जाएगा कहीं ना कहीं. बट हैव पेशेंस. कहीं ना कहीं वो आपके काम में भी रुकावट आ सकती है, बट इट is just a week where this is going to happen. Next week से again we'll see what is going to happen to you. So ये week में थोड़ा संभाल लेना. But yes, definitely केतु is not a bad planet. वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको नई चीज़ें स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन में या रेकी में, और कहीं ना कहीं दैट वो इंटरेस्ट आपको ये वीक में जागेगा where spirituality is concerned. So that is for the planet. अब देखते हैं आपका एग्जैक्ट लव लाइफ क्या कहता है. This is detachment. Detachment, you are releasing old patterns and ideas that no longer serve you. Highest ideas of love. So कहीं ना कहीं इट इज़ अ वीक वे यू वांट टू डिटैच. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म में या मेडिटेशन में या ऑल काइंड ऑफ थिंग्स में जाना चाहोगे इन दिस वीक. सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिटैच करोगे ओल्ड पैटर्न से, ओल्ड आइडियाज से, दैट डजंट एक्चुअली गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट. सो where your love is concerned, relationship is concerned, जो old relationship है, मे बी द रिलेशनशिप जो आपको हर्ट करती हो, कहीं ना कहीं ये वीक डिटैचमेंट का वीक है, वे यू विल डिटैच ऑल दोज थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ योर प्रीवियस लव, या कोई भी प्रीवियस रिलेशनशिप है तो वो आइडियाज़ या जो भी हुआ है रिलेशनशिप में उसको भूल के यू विल स्टार्ट न्यू. यू विल डिटैच ऑल दोज पास्ट दैट इज़ कमिंग. पास्ट में जो भी हुआ है उसको डिटैच करके आप लव में आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, एंड दैट विल गिव यू यू विल सर्व योर हाइस्ट आइडियाज़ ऑफ लव. मतलब तभी आपको जाके सही लव का मीनिंग पता चलेगा, और द राइट पर्सन यू विल अट्रैक्ट आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ योर पास्ट और डिटैचमेंट ऑफ योर ओल्ड रिलेशनशिप विच डिड नॉट सर्व यू बेटर. अब देखते हैं एंजल्स का क्या कहना है. So 2 cards I'm going to pull for the angels reading. So it says reconsider and ask your angels. So कहीं ना कहीं जो चीज़ आप टोटली
जैसे कि एक कपल ऑफ वीक्स पहले जो आपने छोड़ दी हो, या कपल ऑफ वीक्स पहले सोचा होगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, दैट इज़ समथिंग दैट विल कम टू यू दिस वीक। वो ये वीक में वापस आएगा, जिसके लिए आपको उसको रिकन्सिडर करना पड़ेगा। और रिकन्सिडर करना या वापस उसके बारे में सोचना इज़ नॉट अ बैड थिंग। हर एक जन को एक चांस देना चाहिए कहीं ना कहीं, और एक बार 2 वीक या 3 वीक व्हेनेवर पास्ट में आपको जो भी प्रॉब्लम हुई हो, यू नो, वो सेम टॉपिक आके ये वीक वापस आपके सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में रिकन्सिडर करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो मैंने इतने दिन पहले या इतने महीने पहले छोड़ा था, क्या मैं वापस वो करूँ। सो वो क्वेश्चन आपको ये वीक में आएगा कहीं ना कहीं। तो रिकन्सिडर कीजिएगा, थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू वर्क इट आउट एंड आस्क योर एंजल्स। कहीं ना कहीं ये वीक में अगर आपको लगे कि देयर इज़ नो गाइडेंस नहीं आ रहा है, हेल्प नहीं आ रही है कहीं ना कहीं, तो एंजल्स आर आस्किंग यू टू प्रे। आप आपके एंजल्स को, आपके गार्डियन एंजल्स को प्रे करके बुलाइए, और उसमें दे विल कम टू हेल्प यू, दे विल गिव यू गाइडेंस, दे विल गिव यू द आइडियाज़ जिससे साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं डोंट फॉरगेट कि कोई भी ट्रबल में हो या कोई भी आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हो, एंजल्स को प्रे कीजिए, बोलिए प्लीज़ गिव मी guidance towards whatever you want, and the angels आके आपको guidance देंगे। they will, or angels, like I told you, come in any shape. They can come as a human being, they can come as animal, they can come as thought, they can come in any form to give you guidance, give you direction. So just ask for help from your angels, and angels आके आपको help करेंगे. So that's the reading for the week of 23rd of May till the 29th of May. We are done with the reading. We'll come with the other reading. Please let me know in the comment में बताइएगा कि और which reading, कौन सी reading आपको चाहिए, क्या reading चाहिए. If you want a personal consultation, मेरी website का address नीचे है. You can contact through the website. And any questions related to your reading, and if you resonate with the reading, please put a comment and do like and subscribe to my YouTube channel. I am on Instagram as well as on Facebook, जिसका link मैं description में I will give you. Also timestamp for all the 3 files will be in the description, so आपको पूरा वीडियो सुनना नहीं पड़े. Whichever file you resonated with, you can go ahead and see the reading for that file. Thank you. Take care of yourself. Stay safe. Stay positive.